الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اس سے پہلے والے درس میں آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ 5 بنیادی قواعد اور یہ آپ سب کو یاد کرنے ہیں، ہے نہیں؟ یاد ہے نا؟ 5 قواعد، ہاں سب یاد ہیں یا کچھ یاد ہیں؟ ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی۔ تو یہ 5 قواعد جو پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے وہ اجمالی طور پر بیان کیے گئے تھے، یعنی صرف ایسے ہی بیان کر دیے گئے تھے، ابھی اس کی تفصیل نہیں کی گئی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ آپ اسے یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ 5 قواعد یاد کرنے میں تھوڑی بہت پریشانی ہوئی ہو، تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں، معاملے کو ذرا اور ہلکا کر دیتے ہیں، اب جو قاعدہ ہم جس دن پڑھیں گے اس دن وہ قاعدہ یاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نہیں؟ وہ 5 بھی آتے رہیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، میں نے صرف شروع میں اس کو اجمالی طور پر بیان کر دیا تھا، لیکن ان کی تفصیلات کے لیے وہ دوبارہ سب کی سب آئیں گے قواعد۔ پہلا قاعدہ ہم نے شروع کیا تھا اور اسی کی تفصیل آج آپ کو صرف پہلا قاعدہ یاد رکھنا ہے۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ الامور بمقاصدها، الامور بمقاصدها، ٹھیک ہے؟ اس سے پچھلے درس میں نے یہ بتایا تھا کہ امور کے بارے میں، کہ امور یہ انسان کی زبان سے نکلنے والا کوئی بھی لفظ ہو، چاہے اس کے ہاتھ پیر سے ادا ہونے والی کوئی بھی حرکت، کوئی بھی کام، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ امور کہتے ہیں۔ سارے کام انسان کے، اس کی ساری باتیں بے مقاصدہا، ان پر جو حکم لگائیں گے ان کے مقصد کے لحاظ سے حکم لگائیں گے۔ کس مقصد سے یہ بات کہی یا کس مقصد سے یہ کام کیا گیا، مقصد کو سامنے کر کے اس کے اوپر حکم لگائیں گے، یہ اس قاعدے کا معنی ہوا، ٹھیک ہے؟ اس قاعدے کی میننگ جو ہے یہی ہے، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا، میں نے ہر لفظ کی وضاحت کر دی تھی، امور کیا ہے، مقاصد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو معنی کیا ہے اس کا، کہ انسان کی زبان سے ادا ہونے والا کوئی بھی لفظ ہو، کوئی بھی بات ہو، کسی بھی قسم کی گفتگو ہو، یا جو اس کے ہاتھ پیر سے ادا ہونے والے کوئی بھی کام ہو، حرکت کوئی بھی اس کی ہو، اس پر جب ہم حکم لگائیں گے تو پہلے کس کو دیکھیں گے؟ اس کے مقصد کو دیکھیں گے، کہ کام کرنے والے کا مقصد کیا تھا، مقصد کے لحاظ سے کام پر حکم لگائیں گے، مقصد کے لحاظ سے زبان سے ادا ہونے والی بات پر حکم لگائیں گے۔ یہ بات تو ہو گئی قاعدے کے معنی کی۔ اب یہ چیز کی مقصد کا اعتبار کر کے حکم لگائیں گے، اس کی دلیل، یعنی یہ قاعدہ جو بنایا اس کے لیے پروف کیا ہے؟ یعنی صرف مسئلہ یہ نہیں کہ عقل سے ہی سوچ کر کے بنا لیا ہے، بلکہ اس کی کتاب و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر ہیں، اصول موجود ہیں، اصل موجود ہے، اس کے دلائل موجود ہیں یا چیزیں موجود ہیں۔ اس کو کہاں سے لیا ہے؟ اس کی پہلی دلیل ہے، یہ پروف اس کے لیے، انما الاعمال بالنیات۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ ہم نے کہا یہ ایک قاعدہ ہے، ایک فقہی قاعدہ ہے، تو اس کے لیے دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے شریعت کے اندر؟ تو اس کے لیے جو پروف ہے وہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى۔ بڑی مشہور حدیث ہے، نہیں سب کو معلوم ہے، اور پوری حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مقصد بھی صرف اتنے ہی سے حل ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم اس حدیث کا معنی کیا ہے، حدیث کا معنی کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے؟ ہم سوال بھی کریں گے، ہاں جی زبیر بھائی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، ہاں صحیح ہے کیا؟ جی سہیل بھائی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ دار و مدار؟ اعمال کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے،
जी जो भी अमाल को शरीयत की नजर से देखा जाएगा, नियत उसकी नियत, उसके पीछे नियत क्या थी वो पहले देखा जाएगा। अंदाजे से मापा जाएगा। जी उसका फाउंडेशन नियत होगी। हाँ, अमाल को का दारो मदार नियतों पर है। अमाल का दारो मदार नियतों पे। हम लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं? दारो मदार। हाँ, दारो मदार। दारो मदार का मतलब क्या समझते हैं आप? बेसिस। हाँ, बेसिक। हाँ, बेसिस। हम्म, हम्म, उस अमाल को जांचने का एक पैमाना। अमाल को जांचने का एक पैमाना, यही ना कहना चाह रहे हैं दारो मदार? यही लफ्ज समझते हैं क्या? अमाल को जांचने का एक पैमाना, यही है मतलब दारो मदार का। हाँ, ठीक है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो वैसे अरबी ज़बान के लिहाज से मैं आपको एक थोड़ी सी शरह अरबी ज़बान के लिहाज से कर देता हूँ। अरबी ज़बान में ये जो बिन्नियात आया हुआ है, तो बा को कहते हैं हरफ जर, और अन्नियत है नियत की जमा, नियत की जमा अन्नियत। अरबी ज़बान का उसूल ये है, अरबी ग्रामर के लिहाज से, कि जब भी ये हरफ जर आता है तो उसके साथ कोई ना कोई उसका मुताल्लक होना चाहिए। यानी इसका ताल्लुक किसी न किसी वर्ब से, फेल से होगा, या कोई इसमें मुश्तक कहते हैं उसको लोग, तो या तो वर्बल नाउन होता है या वर्ब होता है, उससे उसका ताल्लुक होना चाहिए। ये अरबी ग्रामर के लिहाज से है। यहाँ पर नहीं है, जब नहीं रहता है तो वहाँ उसको मान लिया जाता है। तो यहाँ क्या मानते हैं? इन्नमल आमालु तसिहु औ तअतमिदु या तुअतबरु, इसको वर्ब कहते हैं। कोई भी एक मानना पड़ेगा, वहां पे है नहीं, लेकिन वो अरबी पढ़ने वाला कोई भी जानता है कि यहाँ होना चाहिए वो लफ्ज। जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत सारे अल्फाज बयान नहीं करते, वो समझ लिए जाते हैं, समझ लिए जाते हैं। वैसे यहाँ भी उसे बयान तो नहीं किया गया, लेकिन समझ लिया जाता है। तो हम ये जो मानते हैं ना, इसी का वो जो अभी आप कहते हैं कि मेयार है, जांचने का पैमाना है, वो सब कहाँ से माना आता है? ये जो अल्फाज हैं उसके जरिए से आता है। आमाल मोतबर होते हैं किससे? नियतों से। आमाल में नियतों का एतबार किया जाता है। आमाल सही होते हैं किस पर? नियतों पर। आमाल पर एतमाद, दारोमदार जिसको हम उर्दू में कहते हैं, इसी का माना करते हैं दारोमदार, तातमिदु। यानी एतमा, ये आमाल जो है किसी चीज पर अगर भरोसा करता है तो कौन सी चीज है? नियतें हैं। यही दारोमदार होता है, इसका दारोमदार इसके ऊपर है। तो ये इन्नमल आमालु बिन्नियात जो उर्दू में तर्जमा किया जाता है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, वो इसी लफ्ज के लिहाज से किया जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि यही लफ्ज हो। आप क्या कह सकते हैं? अमाल का एतबार कब किया जाता है? जब उसके साथ नियत शामिल होती है, उसी नियत के लिहाज से उसके ऊपर हम हुक्म लगाते हैं। या अमाल कब सही माने जाते हैं? जब उसके साथ नियत जुड़ी हुई होती है। ठीक है। एक आदमी सोया हुआ है, एक आदमी सोया हुआ है, ठीक है। सोने में, नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है और किसी बगल वाले को गाली भी दे रहा है। क्या हुक्म है उसका? जी हाँ, क्या हुक्म है उसका? नहीं होगी गिरफ्त। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि आमाल जो भी एतबार होता है, जो जांचने के लिए मेयार है हमारे पास, वो क्या है? उसकी नीयत है। नींद की हालत में उसकी कोई नीयत नहीं होती है। जब तक नीयत ना हो, आमाल पर हुक्म कैसे किस पर लगाते हैं? उसकी नीयत पर। यही नीयत मकासिद भी होते हैं। बात समझ में आ रही है ना? क्या होती है? मकासिद। अमल के पर हुक्म लगाने से पहले क्या देखना पड़ता है? उस अमल के साथ नीयत क्या थी, मकसद क्या था, उसी के लिहाज से उस पर हुक्म लगाते हैं। तो ये जो बनाया गया है फिक्ही कायदा, उसके लिए प्रूफ क्या है? ये हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल के ऊपर हुक्म किसके ऊपर लिहाज से लगता है? नियत के लिहाज से। नियत ही उसी को मकसद भी कहा जाता है। दिल में चीज होती है नियत, यानी इस काम के करने का मकसद क्या है, वो चीज होती है, तो उसी के लिहाज से उसे नियत कहते हैं। और यहाँ उसे मकासिद का लफ्ज। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, नियत और मकसद में।
میں وہ فرق بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. اصل میں نیت کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، لیکن مقصد کبھی ظاہر بھی ہو جاتا ہے، مقصد ظاہر بھی ہو جاتا ہے. اور ہم جو یہ الامور بمقاصدها میں پڑھ رہے ہیں، خاص طریقے سے انہی مقاصد کے بارے میں پڑھیں گے جو ظاہر ہوتے ہیں. ہمیشہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو قاعدہ ہے اس لیے نہیں ہے کہ دل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، اس کو جانچنے کی بات نہیں ہے، جبکہ وہ کی حدیث کے اندر وہ چیز بھی شامل ہے، حدیث میں وہ چیز بھی شامل ہے، لیکن قاعدے کے اندر اس چیز کو نہیں رکھا گیا ہے، کیونکہ قاعدے کا تعلق دنیا کے حکم سے ہے اور حدیث عام ہے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی. تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے لحاظ سے ہم اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں، لیکن آخرت کے لحاظ سے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دل سے متعلق ہیں اور دل کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر انسان کو یہی ملے گا جو جس کا اس نے قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، یعنی جو اس کا مقصد ہے. تو کبھی بھی کسی بھی فعل پر، کسی بھی عمل پر جو حکم لگاتے ہیں کس کے لحاظ سے لگاتے ہیں؟ اس کے مقصد کے لحاظ سے لگاتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. ابھی آپ کہیں گے کہ یہ تو صرف عمل کہا گیا ہے، کوئی بات تو نہیں کہی گئی ہے. عمل کا لفظ عربی زبان میں ہاں عمل اللسان کو بھی کہتے ہیں، یعنی زبان کا عمل، یہی کیا ہے؟ قول ہے. تو یہ عمل جو کہا گیا ہے یہ عام ہے، یہ خاص نہیں ہے کہ ہم ہاتھ سے ہی کچھ کریں. دل سے بھی عمل ہوتا ہے، ہاتھ اور پیر سے بھی عمل ہوتا ہے، اور زبان سے بھی عمل ہوتا ہے. زبان کے عمل کو کیا کہتے ہیں ہم؟ بات چیت، گفتگو جو بھی کہہ لیں، وہ جو ہے دل کا عمل، اور اسی سب کو شامل ہے. انما الاعمال بالنیات. میرا مقصد ویسے حدیث کی شرح نہیں ہے. مقصد کیا تھا میرا؟ اس قاعدے کے لحاظ سے ہمارے پاس پروف کیا ہے اس کو ثابت کرنا شریعت کے لحاظ سے. تو یہ دلیل ہے. پہلی دلیل جو تھی میں نے آپ کے سامنے کیا کر دیا، اسے پیش کر دیا. نیت کے تعلق سے اور بھی احادیث ہیں، میں ساری احادیث نہیں پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ ہم کو اس میں زیادہ، ایک حدیث اس کے لیے کافی ہے، اور احادیث میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں. یہ الامور بمقاصدہا. ایک بات اور بھی اس کی شرح کے تعلق سے یاد رکھیے کہ یہ کام ضروری نہیں ہے کہ عبادت سے تعلق ہو. اس کا جو کام ہے کوئی ضروری نہیں کہ اس کا تعلق کس سے ہو؟ عبادت سے ہو، بلکہ وہ چیز عادت میں بھی شامل ہو سکتی ہے. عادت سمجھتے ہیں؟ ہاں، عادت میں بھی وہ چیز ہو سکتی ہے. جیسے ہاں، گھر سے آتے ہوئے گاڑی چلا کر کے آئے ہوں گے، عبادت ہے یا عادت ہے؟ گھر سے نکلنے سے پہلے جوتا پہنے ہوں گے، جوتا پہننا آپ کی عادت میں. کوئی بھی انسان یہ کرتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی. ٹھیک ہے، تو چاہے اس کا تعلق عادت سے ہو یا عبادت سے ہو، سب جو ہے اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ عبادت کے تعلق سے خاص طریقے سے یہ چیز ہوتی ہے. میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو چیز عادت ہوتی ہے لیکن وہاں بھی مقصد کے لحاظ سے اس پر حکم لگایا جاتا ہے، وہ حدیث دلیل کے طور پر اسی قاعدے کی وہ بھی دلیل ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کی حدیث کے راوی ہے، صحیحین کی حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد بھی ہو. اور اس میں یہ ہے انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا. انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی اللقمہ التي تضعها في فم امرأتک. عام طریقے سے یہ حدیث خطبوں میں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن وہ کسی اور مقصد سے سنتے تھے. یہاں ہم کسی اور مقصد سے اس کو بیان کر رہے ہیں.
कि तुम कुछ भी खर्च नहीं करोगे, कुछ भी खर्च नहीं करोगे, तब तगी बिहा वजह अल्लाह, उससे अल्लाह की खुशनुदी तलब करते हुए, अल्लाह की रजामंदी तलब करते हुए कोई चीज़ भी खर्च नहीं करोगे, इल्ला उजिरत अलैहा, मगर तुमको उस पर अज्र दिया जाएगा। ठीक है। हत्ता लुकमा, यहाँ तक के वो लुकमा जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो, उस पर भी तुम्हें अज्र दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? जब तुम उससे अल्लाह की रजामंदी और उसकी खुशनुदी चाहोगे। ठीक है, तर्जुमा तो आ गया नहीं? इन्नक लन तुनफिका नफकतन तब तक, इसका इस कायदे से क्या ताल्लुक है, इस कायदे से क्या ताल्लुक है? ठीक है, अभी मैंने आपसे ये बात कही थी कि ये उमूर जो हैं, ये काम, ये इबादत भी हो सकती है और आदत भी हो सकती है। ठीक, अब यहाँ अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना, ये इबादत है या आदत है? हाँ, इबादत है या आदत है? क्योंकि ये काफिर भी खर्च करता है, दुनिया का कोई भी इंसान हो तो खर्च करता नहीं करता है, यहाँ तक कि हैवान भी अपने बच्चों को खिलाते हैं। ठीक है नहीं? दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं अपनी बीवी को उसके मुंह में लुकमा डालते हैं, लेकिन यही काम जो कि आदत में से है, किस में से है? आदत में से है इंसान की, अगर यही काम वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता है, मकसद आ गया। क्या आ गया? मकसद आ गया। उसके करने का मकसद क्या है? अगर यही काम इस मकसद से करता है कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए, उसको उस पर सवाब दिया जाता है, अज्र दिया जाता है, इल्ला उजिरत अलैहा। ठीक है, तो मालूम क्या हुआ कि वो काम जो आदत से हैं, मकसद के लिहाज से क्या हुक्म लग जाता है उस पर? इबादत का हुक्म लग जाता है और उस पर उसको अज्र मिलता है। तो उमूर यानी कामों पर हुक्म किसके लिहाज से लगा? उसके मकसद के लिहाज से लगा। तो मकसद के लिहाज से किसी भी काम पर हुक्म लगता है, ये दलील है उस कायदे की, इसलिए इसको भी इसमें पेश किया जाता है। तो ये भी एक प्रूफ है कि मकसद के लिहाज से काम पर हुक्म लगता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, दो दलीलें काफी है नहीं? मैंने जो कहा था वो इसके लिहाज से नहीं कहा था। हर कायदा, मैं क्या कह रहा हूँ, जितने भी कवायद आएंगे आपको, हर कायदा अपनी जगह पर दलाइल रखता है किताब और सुन्नत की, और उसी की रोशनी में ये कवायद बनाए गए हैं। ये किसी की जहनी बात नहीं है और न किसी की वो सोच करके उन्होंने बना लिया हम क्यों माने, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये सब की सब क्या रखते हैं? दलाइल रखते हैं। लेकिन जो बात मैंने समझाया था कि ये और उसूल फिक्र में जो थोड़ा फर्क है, वो क्या है? वो फर्क ये है कि ये खुद दलील बनते हैं, ये कवायद खुद दलील बनते हैं। ठीक है, फिर से कहूं, ये कवायद खुद दलील बनते हैं, किसी दलील को पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी मसले के लिए आपसे कोई फतवा तलब किया, कोई चीज हुई, तो उसके लिए अगर आप सिर्फ ये कायदा बयान कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये चीज शरीयत में साबित है, क्योंकि वो इस कायदे के तहत है। ये कायदा साबित है या नहीं है, इसको हमें दलाइल से साबित करना पड़ता है। ठीक है, मैं एक दूसरी मिसाल देता हूं आपको इसी के ताल्लुक से। अभी हम, जी बोलिए। इन्नक लन तुनफिक नफकतन तबतगी बिहा वजह अल्लाह इल्ला उजिरत अलैहा हत्ता लुकमा अल्लती तबउहा फी फमी इमराअतिका। बाद रिवायतों में फी इमरातिक भी है, मतलब वो थोड़े से फर्क के साथ। फम हो या फी हो, दोनों क्या कहते हैं? मुंह को कहते हैं फम बेदमा। ठीक है, ये इस कायदे के लिए दलील है। एक और दलील आपको पेश करता हूं इसी को समझाने के लिए। वो दलील क्या है, इसको समझाने के लिए अहम मानी जाती है। वो दलील हदीस की रोशनी में आपको वो भी पेश करता हूं। नियत के ताल्लुक से और भी अहादीस हैं जो इस कायदे के लिए पेश की जाती हैं, लेकिन एक हदीस हमारे लिए यहाँ कायदे की रूह से काफ़ी है।
हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहु अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू। इस कायदे को कहते हैं सबसे अच्छी तरह समझ में कब आता है, जब ये हदीस आप सामने रख लीजिए, लअनल्लाहु अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू। अल्लाह ताला की लानत हो हलाल करने वाले पर और जिसके लिए हलाल किया गया है उस पर। ये लफ्ज़ क्या है और उसकी शक्ल क्या है, दोनों को सामने रखिए, फिर इस कायदे को सामने रखिए, तो बात आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आएगी। ये निकाह में ये मामला बहुत मशहूर है, निकाह में खास तरीके से हिंदुस्तान में ये चीज़ बहुत मशहूर है, उसके लिहाज से समझने में भी चीज़ आपको आसानी होगी। हम कहते क्या हैं उसको, आप में से मैंने किसी का नाम इसलिए नहीं लिखा है कि हालांकि लिख सकता था, खामखा में हम किसी की जुदाई कराना नहीं चाहते। जैद और फातिमा दोनों का निकाह है और जैद ने फातिमा को 3 तलाक दे दिए। 3 तलाक से मतलब क्या है, तीनों तलाक हो गई, अलग अलग मौके पर जो है उसको तलाक दे दिए, और सबके लिहाज से क्या हो चुकी है, 3 तलाक हो चुके, जिसको तलाक मुगल्लज़ा या तलाक बत्ता, जो भी अल्फाज हम इस्तेमाल करें। अब ये फातिमा के ताल्लुक से ये हुक्म है शरीयत का कि ये उस वक्त तक अब जैद के लिए जायज़ नहीं है, उसके लिए निकाह करना जायज़ नहीं होगा जब तक इसका निकाह किसी और से ना हो जाए, शादी ना हो जाए, उसके साथ जो है ये रह ना ले, तब तक इसका निकाह जैद से नहीं हो सकता। ये शरीयत का एक मसला है। फातिमा जैद के लिए हराम है, फातिमा जैद के लिए हराम है। अब उसके बाद क्या होता है, जैद के फातिमा से बच्चे हैं, परेशानियां हैं बहुत सारी, तलाक देने के बाद उसको ये एहसास हो रहा है कि अब हमारी परेशानियां ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, चाहता है कि हम फातिमा से दोबारा शादी कर लें, लेकिन उसके लिए ये जायज़ नहीं है, फातिमा उसके लिए हराम है। जैद अपने दोस्त बकर से कहता है कि चलो भाई तुम किससे शादी कर लो, फातिमा से शादी कर लो, और उसी वक्त ये बात उससे रखता है कि शादी करके तुम एक रात के बाद उसको तलाक दे देना। ठीक है, किसने कहा, जैद ने बकर से कहा। दोनों में आपस में इत्तेफाक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से है इस चीज़ की, और इसने ऐसा किया भी और उसको तलाक दे भी दिया, सारी चीज़ें हो गई। बताइए, ये जब निकाह कर रहा था बकर फातिमा से, तो फातिमा का वली भी मौजूद है, बकर की रजामंदी भी मौजूद है, फातिमा की रजामंदी भी मौजूद है, और हाँ 2 गवाह मौजूद हैं, जितने भी निकाह की शर्तें हैं सब की सब मौजूद हैं। ज़ाहिरी तौर पर निकाह की जितनी भी शर्तें हैं सब की सब मौजूद हैं और निकाह बिल्कुल सही हुआ है। निकाह का जो अमल है ये बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन इस अमल को, निकाह के इस अमल को शरीयत ने बातिल क्यों करार दिया, सिर्फ किस वजह से कि इस अमल का जो मकसद है वो मकसद गलत था। मकसद क्या था, एक हराम चीज को हलाल करना, जिसको शरीयत ने हराम कर रखा है उसको हलाल करना। उसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं, अल मुहल्लिल, यानी हलाल करने वाला, इसको कह रहे हैं हम हलाल करने वाला, और ये मुहल्लल लहू हो गया, और ये अब उसके लिए हलाल हो गई है। लेकिन शरीयत ने इसके लिए क्या कहा, लअनल्लाहु अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू। किस चीज के ऊपर लगाया यह हुक्म, उसके मकसद के ऊपर। तो किसी भी काम पर जो हुक्म लगाते हैं किसके लिहाज से लगाते हैं, उसके मकसद के लिहाज से लगाते हैं। काम करने में मकसद क्या है आप, जाहिरी तौर पर यह काम बिल्कुल सही है, निकाह बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई खराबी नहीं हुई है, जो भी निकाह के सही होने की शर्तें हैं सब पाई जा रही हैं, जो चीज होनी चाहिए सब हो गई, लेकिन किस वजह से निकाह बातिल है, मकसद के लिहाज से, क्योंकि ये मकसद सही नहीं था। ये मकसद था हराम को हलाल करना। तो जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया है उसको हलाल करना, ये मकसद शामिल था इसके अंदर, इसीलिए इस पर शरीयत ने क्या हुक्म लगाया कि ये बातिल है।
ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बात ध्यान में ये भी रखिएगा, पहले आपके सामने आए कि ये ऐसे कवायद हैं जो सारे के यहाँ मुत्तफ़क़ अलैह हैं, किसी का इख्तिलाफ नहीं है, वरना फिर आप सोचेंगे फिर अहनाफ के यहाँ तो ये जायज़ है, तो ये कायदे के तो खिलाफ हो रहा है। हो सकता है आपके जहन में ये बात हो, ये भी जहन में रखिएगा कि अहनाफ के यहाँ भी ये जायज़ नहीं है। ये गलत तस्वुर लोगों के जहन में बैठा हुआ कि उनके यहाँ जायज़ है, ये उनके यहाँ भी हराम है, उनके यहाँ भी क्या है, हराम है। उनके फ़िक़ही जो किताबें उनकी मौजूद हैं उसके अंदर यही है कि ये पूरा अमल हराम है। वो सिर्फ क्या कहते हैं, निकाह दुरुस्त है इसलिए कि निकाह की सारी शर्तें पाई जाती हैं, लेकिन ऐसा करने वाला वो गुनाहगार है, हराम है उनके यहाँ भी ये। तो हराम करने की वजह से वो क्या होगा, गुनाहगार। बकर भी गुनाहगार होगा और जैद भी। अगर इसमें फातिमा भी उस साजिश में शरीक है तो ये भी गुनाहगार होगी, सब गुनाहगार होंगे। बस वो अमल क्या है, निकाह पर क्या कहते हैं वो, लेकिन ये चूंकि मकसद था इनका उसके लिए हलाल करना, इस मकसद के लिहाज से हुक्म लगेगा उनके यहाँ भी, और ये गुनाहगार होगा। तो अहनाफ के यहाँ भी ये अमल जायज़ नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। उनके यहाँ भी ये जायज़ नहीं, अगर जायज़ होता तो गुनाहगार ना होता, ये सब के सब उनके यहाँ गुनाहगार होंगे जी। अगर ये कायदा समझ में आ गया है, अच्छी तरह समझ में आ गया या नहीं, हाँ आ गया, आगे बढ़ूं। मैंने कहा था कि ये कुछ कवायद, 5 बड़े बड़े कवायद हैं, इनके तहत छोटे छोटे कवायद बहुत हैं। अब उन कवायद को, जो छोटे कवायद एक इस कायदे के तहत आते हैं, मैं आपको उनको पहले पेश करता हूँ। मैं आपके किताब में कुछ उसमें है, वो कुछ कवायद उसूली कहलाते हैं, कुछ कवायद फ़िक़हिया कहलाते हैं। इसमें दोनों बातें याद रख लीजिएगा, मतलब इस जो किताब के अंदर, जो असल किताब का अरबी नाम है, उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, इसीलिए कवायद भी दोनों तरह के हैं, उसूली भी हैं और फ़िक़ही भी हैं। तो इसके बाद के 4 जो है उसूली कवायद बयान किए हैं, वो कवायद फ़िक़हिया में नहीं आते हैं, बल्कि किस में आते हैं, कवायद उसूलिया में आते हैं, यानी उसूल फ़िक़ह से उसका ताल्लुक़ होता है। मैं उसमें से जो उन्होंने पेश किया उसकी मैं पहले आपके सामने वजाहत कर देता हूँ, उसके बाद हम इस कायदे के तहत जो कवायद फ़िक़हिया हैं उसको बयान करेंगे। उन्होंने जो इसके बाद पेश किया, अरबी में उसको कहते हैं, वो इंग्लिश में आपके यहाँ लिखा हुआ है, मा ला यतिम्मुल वाजिबु इल्ला बिही फहुवा वाजिब। ये इन चारों का ताल्लुक कवायद उसूलिया से, याद रख लीजिए, कवायद उसूल यानी उसूल फ़िक़ह के भी कुछ कवायद हैं, उससे इनका ताल्लुक है, कवायद फ़िक़हिया से नहीं है, जो खुद दलील बनते हैं फी नफ्से। किताब में लिखा है बोल करके मैं लिख दे रहा हूँ, और थोड़ा समझा करके फिर हम उसी की तरफ आ जाएंगे। हाँ, कुल्लु मा जर्रा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, छोड़ दूँ? हाँ, किताब को फॉलो करने की बजाय आप जो हमारे को समझने में आसानी वगैरह, ठीक ठीक, मैं वैसे समझता हूँ। नहीं, मैं भी उसको बेहतर समझता हूँ, लेकिन किताब में बोल करके मैं इसको लिख रहा था, कोई हर्ज नहीं, ताकि हमारा इस कायदे से ताल्लुक़ बाकी है। आखिर में इस कायदे के आखिर में उसको बयान कर देंगे, बाद में बयान कर देंगे, लेकिन जो है फ़िलहाल इसी पे चलेगा। इसी कायदे से जुड़ा हुआ एक, इसी कायदे के, इस कायदे में ये कायदा है, मन इस्तअजल शैअन क़ब्ल अवानिही अल उमूर बिमक़ासिदिहा के तहत ये कायदा, मन इस्तअजल शैअन, अरबी में ये लिखा हुआ, मैं हर लफ्ज़ की वजाहत कर दूंगा आपके सामने। आप चाहें तो अरबी में इसको ऐसे ही लिख लीजिए, और इंग्लिश में लिखना चाहें तो उसको ऐसे इंग्लिश रस्मुल ख़त में लिख लीजिए, कोई हर्ज नहीं। मन इस्तअजल शैअन क़ब्ल अवानिही उक़िब बिहिरमानिही, मन इस्तअजल शैअन क़ब्ल अवानिही उक़िब बिहिरमानिही।
من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. میرے اس پر اگر آپ فالو کر کے انگلش میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. ٹھیک ہے، من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. اب ایک قاعدہ ہو گیا یہ، اور یاد ہو گیا ہوگا الامور بمقاصدها. اب اس کو آپ کو یاد کرنا ہے. من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا، جس نے جلدی کیا کسی چیز کے بارے میں اس کا وقت آنے سے پہلے، وقت آنے سے پہلے حاصل کرنا چاہا. جس نے جلدی کیا کسی چیز کے بارے میں اس کا وقت آنے سے پہلے عوقب بحرمانہ، اس کو سزا دی جائے گی اس کو اس سے محروم کر کے. کسی چیز کے بارے میں اس کا وقت آنے سے پہلے اس کو سزا دی جائے گی اس کو اس چیز سے محروم کر کے. تو جس نے کوئی چیز وقت سے پہلے حاصل کرنا چاہا اس کو اس سے محروم کر دیا جائے گا، مقصد کے کا لحاظ کرتے ہوئے. جس نے کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنا چاہا اس کو اس سے محروم کر دیا جائے گا. اردو میں آپ چاہیں تو بالکل آسان سا، میں نے الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے مانا گیا. من استعجل شیئا، جس نے جلدی کیا، استعجل جلدی کیا، شیئا کسی بھی چیز کے بارے میں، قبل اوانہ اس کا وقت ہونے سے پہلے، عوقب بحرمانہ اس کو سزا دی گئی اس سے محروم کر کے. تو جو کوئی شخص وقت سے پہلے کچھ حاصل کرنا چاہے گا اس کو اس سے محروم کر دیا جائے گا. جی، اس کو اس چیز سے محروم کر دیا جائے گا. وقت آنے سے پہلے اگر اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس چیز سے محروم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، الفاظ سمجھ میں آگے. اس کی دلیل جو ہے شریعت کے تعلق سے، عرف کیا ہے اس کا شریعت میں. اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کو اس کی وراثت میں حصہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ ہاں، تو بیٹا اتنا مضبوط قسم کا وارث ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو ہٹا نہیں سکتے. اپنی غلطی سے وہ ہٹ سکتا ہے لیکن دوسرے لوگ اس کو ہٹا نہیں سکتے. اس لیے بیٹے کو رکھتے ہیں ساتھ میں. کس کو رکھتے ہیں؟ بیٹے کو. بیٹا اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ وارث بنتا ہے. باپ کا مال بیٹے کو کب ملتا ہے؟ جب باپ کا انتقال ہو جائے تبھی نہ ملتا ہے. وارث ہونے کا مطلب یہی ہے. اب بیٹے نے یہ سوچا کہ باپ کا انتظار کون کرے گا، لاؤ اس کو ختم ہی کر دیتے ہیں، مال جو کل ملنا ہے وہ آج ہی مل جائے گا. اگر بیٹے نے قتل کر دیا باپ کو تو بیٹے کو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا. آگے سمجھ میں؟ وقت تھا وراثت کا کب؟ اس کا جب باپ کا انتقال ہو جاتا تو بیٹے کو حصہ ملتا اس میں سے. لیکن بیٹے نے اس کا وقت آنے سے پہلے کیا کر دیا؟ جلد بازی کر لیا اور باپ کو قتل کر دیا تو بیٹے کو باپ کے مال میں سے حصہ نہیں ملے گا. بالکل فٹ آ رہا نہیں آ رہا؟ جس نے جلدی کیا کسی چیز کے بارے میں اس کا وقت آنے سے پہلے تو اس کو اس سے محروم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے شریعت کے اندر یہ اصول ہے کہ قاتل وارث نہیں بنتا ہے. بس صرف بیٹے کا معاملہ نہیں ہے، بھائی ہے، ایک بھائی کا ایک وارث صرف بھائی ہی ہے تو سوچتا ہے ہم بھائی کا انتظار کب تک کرتے رہیں گے. اس نے بھائی کو اگر قتل کر دیا تو اس کو اس کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا. آگے بات سمجھ میں؟ الامور بمقاصدها اس تعلق کیا ہے اس کا؟ اس قتل کرنے میں مقصد کیا تھا اس کا؟ مال کو حاصل کرنا. جو مقصد تھا اسی سے اس کو محروم کر دیا گیا. ٹھیک، اگر یہی چیز بیٹے سے غلطی سے ہو جائے تو
एक दोस्त ये तो हो गई जो है यानी कायदे को समझाने के लिए कि इसके लिए प्रूफ शरीयत में क्या है। अब एक दूसरा इसी से जुड़ा हुआ मसला जो इसी कायदे के रूह से उस पर हुक्म लगाते हैं, वो मसला मैं आपको पेश कर रहा हूं। जैद ने अपने माल के लिए वसीयत किया, अपने माल के लिए वसीयत किया बकर के बारे में, जो उसका रिश्तेदार नहीं है, उसका रिश्तेदार नहीं है, उसके बारे में वसीयत किया। बकर को मालूम है कि जैद ने मेरे लिए क्या किया है, वसीयत कर रखा है, और जानते हैं आपकी ये वसीयत करना जायज है गैर वारिस के लिए, जबकि 1/3 हो या 1/3 से कम हो, जायज है। अब उसकी जायदाद बहुत अच्छी खासी है जैद की, और बकर के लिए उसने वसीयत कर रखा है, उसको मालूम है कि मेरे लिए वसीयत कर रखा है। अब उसने सोचा कि ये अच्छा खासा माल 1/3 उसकी जो पूरी जायदाद का मुझे मिल रहा है, कब तक इंतजार करेंगे, उसने कत्ल कर दिया उसका। अब ये वसीयत का हक उसको हासिल नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं बयान किया गया लेकिन ये हदीस के अंदर मौजूद है। इससे ये कायदा बनाया गया, और इस कायदे के रूप से दूसरे जो मसाइल आएंगे उसको उन पर जो है क्या किया जाएगा, नाफिज किया जाएगा, और वही कायदा दलील के तौर पर पेश कर देंगे। अगर कोई पूछे आपसे कि भाई ये वसीयत क्यों नहीं उसके लिए नाफिज की जाएगी, तो दलील क्या है, मन इस्ताजल शयअन क़ब्ल अवानिही उक़िब बिहिरमानिही। ठीक है, फिर से कहूं, कायदा समझ में आया आपको? हाँ, मन इस्ताजल शयअन क़ब्ल अवानिही उक़िब बिहिरमानिही। ठीक है, अगर वक्त से पहले किसी चीज को हासिल करना चाहेंगे तो उसको उस चीज से महरूम कर दिया जाएगा। ये तो यानी इसके कायदे के ताल्लुक से कभी एक चीज और भी इसी से जुड़ी हुई होती है, लेकिन वो इस कायदे में नहीं आती है, दूसरी चीज में वो आती है, लेकिन असल कायदे से उसका भी ताल्लुक है। शौहर बिल्कुल मरने के करीब हो गया है, मरने के करीब हो गया, अब उसको यकीन है कि मुझे मर जाना है। आज के ज़माने में वैसे भी डॉक्टर वगैरह कुछ पहले कि बस ये जो है 1-2-3 दिन के मेहमान है या एक दिन के, कुछ इस कैफियत में उसकी यानी ऐसी कंडीशन है उसकी इस वक्त। ऐसे वक्त में उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। बीवी को मकसद क्या है कि बीवी को विरासत से महरूम कर दे। अगर बीवी रहेगी मेरी वफात के वक्त में तो उसको क्या मिलेगा, विरासत में हिस्सा मिलेगा। इसी मकसद से क्या कर दिया, उसने तलाक दे दिया। मकसद ये है इस काम में, मकसद ये है, क्या कहते हैं लोग, उस बीवी को विरासत में हिस्सा दिलाया जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसने उसको महरूम करने के लिए तलाक दिया है, और कुछ भी उसका मकसद नहीं है उसके अंदर। जब बिल्कुल ये वाजे हो जाए तो सारे फुक़हा के नज़दीक, उसमें कुछ लोगों ने कुछ कंडीशन रखे हैं, लेकिन है ये सबके नज़दीक, जैसे बाद लोगों ने ये कहा कि अगर वो इद्दत में है तो उसको हिस्सा मिलेगा, यानी इतना ही वक्त था कि अभी वो इद्दत गुजार रही है उसकी, तो उसको हिस्सा मिलेगा। कुछ ने कहा कि अगर दूसरी शादी उसकी नहीं हुई है, अभी भी वो बाकी है वैसे ही, तो उसको हिस्सा दिया जाएगा। तो जो भी, लेकिन है सबके यहाँ ये बात कि उसको हिस्सा दिलाया जाएगा, क्योंकि मकसद उसका क्या था, उसको महरूम करना, और किसी वजह से उसने तलाक नहीं दिया है। ये बातें थी जो आपके सामने, मन इस्ताजल शयअन क़ब्ल अवानिही उक़िब बिहिरमानिही। एक और कायदा मैं आपको जो पहले कायदे से, इसी कायदे से जुड़ा हुआ है, वो पेश करता हूँ, फिर आपको मौका देता हूँ सवाल करने का। मक़ासिदुल अल्फाज़ि अला नियतिल लाफ़िज़। इल्ला फ़ी सूरतिन वाहिदा। ये लंबा है इसलिए थोड़ा सा इसका ख्याल कीजिएगा। हाँ, हो सके तो उर्दू में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ अल्फाज, मक़ासिदुल अल्फाज़ि अला नियतिल लाफ़िज़ि, मक़ासिदुल अल्फाज़ि अला नियतिल लाफ़िज़ि इल्ला फ़ी सूरतिन वाहिदा वहियल हलिफ़ु
फ़इन्नहा अला नियतिल मुस्तहलिफ वहियल हलिफु या वहियल हिल्फु। फ़इन्नहा अला नियतिल मुस्तहलिफि। मकासिदुल अल्फाज़ि, मकासिदुल अल्फाज़, यही मकासिद का लफ्ज़, मकासिदुल अल्फाज़ि अला नियतिल लाफ़िज़ि, मकासिदुल अल्फाज़ि अला नियतिल लाफ़िज़ि। असल कायदा यहीं तक हो जाता है, लेकिन एक उसकी शक्ल मुस्तस्ना है बोल करके इतना लंबा आया है, वरना इतना भी रखेंगे तो हो जाएगा। असल यही कायदा है जैसे जुड़ा, मकासिदुल अल्फाज़ि अला नियतिल लाफ़िज़ि। ठीक है, पहले इसकी मीनिंग कर देता हूँ, फिर जो है इसको पढ़ेंगे। हाँ, क्या है इसका? मकासिदुल अल्फाज़, अल्फाज के मकासिद, इस लफ्ज़ को बोलने से मेरा क्या मकसद था। आजकल आप सियासी ज़बान में सुनते रहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर, या मेरा ये मकसद नहीं था, बोलते रहते नहीं बार बार। तो वही जो है ये कायदा है असल में, मकासिदुल अल्फाज़, अल्फाज के मकासिद अला नियतिल लाफ़िज़, बोलने वाले की नीयत पर होंगे। अल्फाज के मकासिद किसके ऊपर होंगे? बोलने, लाफिज कहते हैं बोलने वाला, जिसकी मुंह से लफ्ज अदा हुआ है वो लाफिज। ठीक है, तो अल्फाज के मकासिद किसके ऊपर हैं? बोलने वाले की नीयत पर है कि उसने इस लफ्ज से क्या मकसद लिया है, उसके बोलने का मकसद क्या था। सुनने वाले का एतबार नहीं, किसका एतबार होगा? बोलने वाले का एतबार होगा। मकासिदुल अल्फाज़ि अला नियतिल लाफिज़ि। ठीक है, इल्ला फी सूरतिन वाहिदा, सिवाय एक सूरत में, यानी हमेशा यही कायदा रहेगा, लेकिन एक शक्ल ऐसी है जहां पर यह कायदा नहीं रहेगा। वो शक्ल क्या है? कसम खिलाना, वहियल हालिफु। इल्ला फी सूरतिन वाहिदा, सिवाय एक सूरत में, एक शक्ल में, वहियल हिल्फु या वहियल हालिफु, और ये क्या है? कसम खिलाना है। अगर किसी ने किसी से कसम खिलाया है तो उस वक्त किसका एतबार होगा? फ़इन्नहा अला नियतिल मुस्तहलिफ, उस वक्त अल्फाज के मकासिद कसम खिलाने वाले की नीयत पर होंगे, कसम खिलाने वाले की नीयत पर होंगे। ठीक है, ये अल्फाज है। मैं फिर से पढ़ता हूँ आपको, उसका तर्जुमा करता हूँ उर्दू में, फिर मैं समझाता हूँ कैसे ये दोनों को अलग अलग अल्फाज क्या देखिए। मकासिदुल अल्फाज़ि अला नियतिल लाफिज़ि, अल्फाज के मकासिद बोलने वाले की नीयत पर होंगे, सिवाय एक शक्ल के, इल्ला फी सूरतिन वाहिदा, सिवाय एक शक्ल के, और वो शक्ल क्या है? कसम खिलाना। कसम खिलाने में अल्फाज के मकासिद कसम खिलाने वाले की नीयत पर होंगे। ठीक है, कसम खिलाने वाले के, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ तो उसको आपको बात समझ में, ये पहले इसको बयान करता हूँ। कसम खिलाना, जैद और बकर, ठीक है, आप में से किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ अभी भी, अभी कोई हरज नहीं है, वैसे बाद में लूंगा, अभी जब कोई अच्छी चीज आएगी तो ले लूंगा जो है, अभी फिलहाल जो है नहीं ले रहा हूँ। जैद और बकर दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। तो शुरू से ये बात कही जा रही है कि ये कवायद खास तरीके से फैसला करने में ज्यादा जो है उसकी जरूरत पड़ती है। दोनों में झगड़ा हो गया। जैद ये कह रहा है कि मेरे 1000 रुपये मैंने बकर को कर्जा दिया था और उसने अभी लौटाया नहीं है। ठीक है, दुकान का मामला भी हो सकता है कि इसने सामान लिया और ये जैद कह रहा है कि उसने पैसा नहीं दिया है, पैसा नहीं दिया है। 1000 रुपये उसने दिए नहीं, जैद ने ये दावा किया। बकर क्या कह रहा है कि मैंने ये पैसे दे दिए हैं। ठीक है, मैंने ये पैसे दे दिए। अब शरीयत के लिहाज से फैसला क्या होता है कि दलील पेश करना पड़ेगा, सबूत कोई भी। अब कोई गवाह हो, कोई सबूत हो तो वो पेश कर दे। उसके पास कुछ भी नहीं है कि जो है वो साबित करे कि उसने दिया नहीं है। अब शरीयत के लिहाज से फैसला कैसे करना है जब किसी के पास कोई गवाही नहीं, कोई चीज ही नहीं है, मामला सिर्फ दोनों के दरमियान है। तो शरीयत का एक उसूल ये है कि जो इनकार कर रहा है वो कसम खा लेगा तो उसकी बात मान ली जाएगी। अब बकर को क्या करना है? कसम खाना है कि मैंने ये उसको दे दिए हैं। ठीक है, सिर्फ कसम खा रहा है। या जैद को ही मान लीजिए कि उसको इनकार कर रहा है कि नहीं दिए हैं बोल करके, वो कसम खा ले कि मुझे इन्होंने 1000 रुपये नहीं दिए हैं। इनकार करने के लिहाज से वही कसम खाएगा, तो मुझको इन्होंने 1000 रुपये नहीं दिए। अब ये कसम खिला रहा है बकर या कोई काजी जो भी हो,
इसको कहेंगे कसम खिलाने वाला। और कसम खाने वाला कौन है? जैद है, वो कसम खा रहा है। अब यहां पर जैद जो कसम खाएगा वो कसम खिलाने वाले की नीयत का एतबार करेंगे। जैद ने कसम खाते हुए ये जहन में रखा कि उसने मुझे ये 1000 रुपये उस मौके पर नहीं दिए थे, हालांकि बाद में दे दिए थे, बाद में दे दिए थे, लेकिन उस लिहाज से उसने ये कसम खा लिया कि मुझे उस मौके पर नहीं दिए थे, तो ये कसम उसकी झूठी कसम मानी जाएगी। क्योंकि जो कसम खिला रहा है वो किस लिहाज से खिला रहा है? कभी भी नहीं दिया बोल करके इस लिहाज से कसम खिला रहा है। अगर जैद अपने लिहाज से कुछ सोच करके, जिसको तौरिया वगैरह कहते हैं, कसम खा रहा है तो ये माना नहीं जाएगा, क्योंकि कसम खिलाने वाले की नीयत का एतबार होगा, उसकी नीयत का एतबार नहीं होगा। ठीक है। दूसरी मिसाल, जो हम लोग खास तरीके से मदरसों में ये चीज़ जो है ज़्यादा करते रहते हैं, तो मैं वो मिसाल आपको दे रहा हूँ। कभी कभी बास तलबा से पूछते हैं, भाई फजर की नमाज पढ़ ली? फजर की नमाज पढ़ ली? तो कहा हाँ पढ़ ली। यानी मकसद क्या है? आज तो नहीं पढ़ी है, कभी पढ़ी है। भाई कोई भी मोमिन है तो कभी न कभी तो पढ़ा ही होगा, समझ रहे हैं? तो जवाब क्या दिया उसने? पढ़ लिया। उसका मकसद क्या है? कभी पढ़ लिया बोलते। आज तो आज के लिहाज से उसने नहीं बोला है। अब अगर उससे कसम खिलवाए उस्ताद कि कसम खाओ कि तुमने आज की बातें कि तुमने फजर की नमाज पढ़ ली है, वो कसम खा के कह रहा है कि मैंने फजर की नमाज पढ़ ली है, तो इसमें उसको झूठा माना जाएगा, क्योंकि उस्ताद का मकसद क्या था? आज की फजर की नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। इसमें किसकी नीयत का एतबार होगा? कसम खिलाने वाले की नीयत का एतबार, कसम खाने वाले की नीयत का एतबार नहीं होगा। ठीक है, हो गया ये वाली तो बात समझ में आ गई। अब क्या है, ये असल जो हमारा कायदा है वो ये है, मकासिदुल अल्फाज़ि अला नियतिल लाफिज़ि। अल्फाज के मकासिद हमेशा बोलने वाले की नीयत पर, उसका मकसद जो मुतय्यन करेंगे वो बोलने वाले की नीयत पर मुताल्लिक होगा। सुनने वालों की नीयत का एतबार नहीं कि उसने किस मकसद से कहा है ये लफ्ज़, ये सिर्फ उसी के अपने सराहत पर या वो जो उस सिलसिले में बात कहेगा उसी की बात को मान लिया जाएगा। ये कायदा है। ठीक है। थोड़ी इसकी इंशाअल्लाह जो है वजाहत आपके सामने इसके बाद वाले दर्स में आएगी, क्योंकि अभी जो है जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि ये अजान क्या है हमारे लिए घंटी है कि टाइम खत्म हो गया है। ठीक है, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, वो सवाल जवाब की जो बात है अजान खत्म होती है तो वो जो है सवाल जवाब कर देंगे। फ़इन्नहा, कसम खानी पड़ती है। जो दावा करता है उसको नहीं कसम खानी। सूरत में अगर वो कसम खा ले कि उसने नहीं दिए हैं, हाँ, तो बकर को अदा करनी पड़ेगी। अदा करना पड़ेगा। अगर बकर भी कसम खा बैठे कि नहीं मैंने नहीं, दे दिए वो हैं, कसम उसी को खाना है बस। बकर को दलील देना है, बकर को सबूत पेश करना है कि मैंने जो है दे दिया है। सबूत अगर नहीं पेश कर रहा है देने का, तो वो सिर्फ कसम खा लेगा कि जो है उसने मुझे नहीं दिया है। शौहर बीवी में इख्तलाफ हो जाए कि महर का पैसा दिया है या नहीं दिया है, तो देने का काम शौहर का चूंकि है, तो शौहर को अगर कहता है कि मैंने दिया है तो उसको दलील पेश करना पड़ेगा, सबूत पेश करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं प्रूफ देना पड़ेगा उसको। यही बैना कहते हैं अरबी में। अल बैनतु अल मुद्दई वल यमीन वाला मन अनकर, ये एक उसका पूरा जो है उसूल है, वो भी एक कायदा आएगा वो, कि जो दावा कर रहा है उसको क्या करना पड़ता है? प्रूफ देना पड़ता है, सबूत देना पड़ता है उसको। जो इनकार कर रहा है कसम उसी को खानी है। अगर ये अपना सबूत नहीं पेश कर सका, किसी प्रूफ से साबित नहीं कर पाया अपने दावे को, तो जिसका इनकार करने वाला है सिर्फ क्या खा लेगा वो? कसम, उससे कसम खिलवाई जाएगी। अगर बकर की सूरत में ऐसी ये इनकार कर दे कि मुझे पैसे देने ही नहीं है, तो वो अलग बात, हाँ, वो मसला अलग है। अलग मसला। नहीं, उसका असल वही है कि हमेशा हमें याद रखिए कि दावा कौन कर रहा है, इनकार कौन कर रहा है, बस इसी का एतबार होता है। दावा करने वाले को प्रूफ देना है, इनकार करने वाले को प्रूफ नहीं देना है, उसको सिर्फ कसम खा लेगा। लेकिन उसके कसम खाने का नंबर बाद में आता है, इसके प्रूफ न पेश करने की सूरत में। अगर इसने प्रूफ पेश कर दिया है तो उसी का पहले उसी के लिहाज से फैसला किया जाएगा। और उसके कसम खाने के बाद इसको प्रूफ इसने पेश किया, नहीं, कसम कब खाएगा? जब इसने प्रूफ नहीं पेश किया। हाँ, पर उसको तभी प्रूफ नहीं मिला था, जी बाद हाँ, में इसका खत्म खाने के बाद उसको प्रूफ मिला। नहीं वो जो है ये शक्ल नहीं आती,
क्योंकि कभी भी कसम उसी वक्त खिलाएगा जब मुकम्मल तरीके से इससे नाउम्मीदी हो गई कि अब कोई प्रूफ नहीं है. तो इस एग्जांपल में एक बात तय हम्म. तय मानी जाएगी कि हम्म. जायद को जो है पैसे आने थे बकर के पास से, जी हाँ, आने थे, थे. उस बात का सबूत मौजूद है और बकर भी जो है इस बात सामान खरीदा है मतलब मिसाल के तौर पर उसकी दुकान से सामान ले गया, उसके पास है. ऐसा भी हो सकता है कि कभी इनकार करने वाला ये हो जाए तो कसम इसको खानी पड़े. तो जो इनकार करने वाला है उसको कसम खानी है. ये तकरीबन जो है उस किताब के अंदर तो जो है 20 के करीब दिए हैं, यानी जो पहले कायदे के तहत आते हैं. अगर आप पहले एक मरतबा लिख कर दे दें तो कोई अरबी में टाइप कर देंगे हाँ, तो सर्कुलेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो ठीक है, उसमें लिख कर देने की ज़रूरत नहीं है. मैं उसी की फोटोकॉपी जो है किताब की वो एक जगह पर लिखा है उन्होंने पूरे, उसी के कॉपी दे देते. नहीं वो सिर्फ अरबी है, वो तो ट्रांसलेशन हम लिख लेंगे. कर लेंगे इंशाल्लाह. शेख इसी मामले में अगर जैद कहे कि बकर को मुझे 1000 रुपए देने हैं और बकर क्योंकि उसने मेरी दुकान से चीज़ें ले ली, बकर कहे कि मैंने चीज़ें ही नहीं ली, तो कसम बकर को खाना पड़ेगा कि जी हाँ, इनकार वही कर रहा कि मैंने लिया ही नहीं सिरे से. अब उसको साबित करना पड़ेगा जैद को कि इसने लिया है. चीज़ें ले गई. जी हाँ, अगर है तो उसको नहीं पाएगा मकसद के एतबार से. ऐसे ये मुराद हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल में है और डॉक्टर्स कहें कि इनका मतलब हम टाइम नहीं दे सकते, कुछ बोल नहीं सकते, तो हम उसको डिस्चार्ज कर दिए क्योंकि हमारा मकसद ये था कि हम उसके पैसे बचा लें, मतलब जो पैसे हॉस्पिटल में जाने वाले हैं वो पैसे बचा लें. तो उस वक्त क्या वो पैसे भी नहीं मिलेंगे और किसको मतलब हम जो पैसे हॉस्पिटल को भर रहे थे और उस पेशेंट के बारे में डॉक्टर्स उम्मीद छोड़ देते हैं. जी हाँ, कुछ नहीं कर सकते, इलाज की कोशिश कर सकते हैं अपना. जी हाँ, तो उसके ठीक है. तो हम उस शक्ल में क्या करेंगे, मतलब तो हम ये सोचते हैं कि वो पैसे बचा के वो फैमिली की मदद कर सकते हैं. ठीक है. तो उस हालत में हमारे मकसद के एतबार से वो पैसे भी अल-उमूर नहीं मिलेंगे क्या? अल-उमूर बेमकासिदिहा. कहाँ से नहीं मिलेंगे? मतलब हॉस्पिटल को जो भरने वाले थे हम, तो भरने के बजाय हम सोच रहे हैं कि हम शेख वालिदैन को देने वाले थे, वालिदैन को देने तो वालिदैन ये सोचेंगे चलिए हमें पैसे मिल जाएंगे बोल के जो है उसे डिस्चार्ज कर दिए. हाँ, हालांकि अभी इलाज हो सकता था, हालांकि इलाज हो सकता था. हालांकि डॉक्टर बोल दिया है कोशिश कर नहीं है बोल के. तो कोशिश कर सकते हैं बोले. नहीं, उसकी फिर ज़रूरत नहीं ना है. जब वो उसकी कोई उम्मीद नहीं है तो एक चीज़ जिसकी कुछ उम्मीद ना हो वहाँ पैसे खर्च करने का तो कोई असल इसमें तो नहीं आता है. चांसेस हो सकते हैं. इस कायदे में तो वो नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो हालात के लिहाज से वहाँ पैसे खर्च करना तो बेकार है, क्योंकि इससे भी मना किया गया कि अपने माल को बर्बाद ना करो. अगर 1% भी अगर चांसेस देते हैं, 1% हम कोशिश कर सकते हैं बोल के, तो उस हालत में हम कोशिश कर सकते जी हैं हाँ, या फिर वो पैसे बचा के कर सकते हैं. अगर 1% भी चांस दे रहे हैं तो चांस ले सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी मौत तो किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में. लेकिन कभी ऐसी भी शक्ल हो जाती है कि वो बिल्कुल ही अब वो हाँ, तो वहाँ तो खामखा पैसे खर्च करना बेकार है. अगर 1% भी शक्ल, अगर 1% भी चांस देते हैं हमें खर्च करना है, अगर नहीं करेंगे तो गलती होगी क्या? नहीं, वो एक अलग वो उस आदमी की अपनी हालत पर वो डिपेंड करता है. ऐसा नहीं है कि जो है वो पैसा है भी नहीं तो हम खामखा जो कहाँ से लाके खर्च करें. पैसे हैं, हाँ, वो खर्च करना चाहिए, कोई हर्ज नहीं. पैसे हैं, खर्च करना चाहिए. खर्च किस पे करना चाहिए? वो जिसके उसके इलाज पे. नहीं, 1% चांसेस, हाँ, उसके इलाज पे पैसे खर्च करेंगे. नहीं तो उसके वालिदैन को देने के लिए नहीं, उसके उसी के ऊपर खर्च करेंगे. और किसके लिए खर्च करेंगे? उसके इलाज के लिए, अगर 1% भी चांस है. जब तक सांस है तब तक आस है, कहते हैं. जी नहीं है, बस करें. फायदा तो नहीं है शेख. हाँ? उर्दू का कायदा है ये. ठीक है, अच्छी बात है. सुभानक अल्लाह.